اگر آپ کسی ناانصافی کو دور نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کے بارے میں سب کو بتائیں۔ میں نے صرف قبرستانوں، ہسپتالوں اور بڑھاپے کی دہلیز پر سچی محبت کی جھلکیاں دیکھی ہیں۔ خودکشی کے اکثر واقعات میں لوگ مرنا نہیں چاہتے، بس وہ چاہتے ہیں کہ ان کا درد مر جائے۔ یہ معاشرہ آپ کے باغی ہونے پر تنقید تو کرتا ہے، پر آپ باغی کیوں بنے اس پر بات نہیں کرتا۔ ایسے چہروں سے آشنائی کبھی ختم مت کریں جنہوں نے آپ کے چہرے کو پڑھنا سیکھا ہو۔ جو آدمی سچ بولتا ہے اسے اس پوچھ گچھ سے کوئی فرق نہیں پڑتا جو ایک جھوٹا کرتا ہے۔ آپ تمام پھول کاٹ سکتے ہیں لیکن آپ بہار کو آنے سے نہیں روک سکتے۔ غریب ہونا بے ایمان ہونے سے اچھا ہے۔ مصیبت و آفت کی گھڑی میں لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے والے جہنمی ہیں۔ خوبصورت چہرہ عورت کا ہو یا مرد کا، گناہوں کی جانب لاتا ہے۔ بڑھاپے سے زیادہ غصے، انتقام اور نفرت کے جذبات انسان کے چہرے کو بگاڑ دیتے ہیں۔ انسان اپنی پوری زندگی میں کوشش کے باوجود بھی اجالا نہ لا سکے تو کوئی بات نہیں، لیکن اندھیرے سے صلح نہ کرے۔ جو غلام بغاوت نہیں کرتا وہ رحم کا مستحق نہیں۔ اس سپاہی کو جینے کا کوئی حق نہیں جو اپنی بندوق کو اپنے ہی لوگوں کے خلاف استعمال کرے۔ مجھے ہر اس شخص سے محبت ہے جو ظالم کے خلاف مظلوم کے حق کے لیے لڑے، خواہ وہ کسی بھی نسل، رنگ یا مذہب سے ہو۔ انقلاب وہاں آتے ہیں جہاں ظلم کرنے والا کوئی ایک ہو، جہاں ہر شخص اپنے اپنے حصے کا ظلم کر رہا ہو، وہاں انقلاب نہیں عذاب آتے ہیں۔ دنیا کی سب سے جاہل ترین عوام وہی ہے جو اپنے مشترکہ حقوق کی بجائے اپنے ظالم فرعون لیڈروں کے لیے آپس میں لڑتے ہیں۔ ایک ظالم ملک میں آپ نے یا تو ظلم پر ہنسنا سیکھا یا پھر اپنی زندگی روتے گزار دی۔ جب ناانصافی قانون بن جائے تو مزاحمت فرض بن جاتی ہے۔ میری ماں نے مجھے جنم دن پر ایک قلم اور ایک بندوق دیا۔ میں نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو ماں نے جواب دیا، قلم علم کی نشانی ہے اور بندوق جد و جہد کی۔ میں جانتی ہوں بغیر علم کے تمہاری بندوق گنہگار اور بے گناہ میں فرق نہیں کر سکتی۔ ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا سمندر کتنا دور ہے۔ جتنی تباہی ایک غیر معیاری درسگاہ اور تنگ ذہن استاد پھیلاتا ہے، اتنی تباہی بڑی بڑی جنگوں سے بھی نہیں ہوتی۔ سر اٹھا کر جینے کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، جبکہ سر جھکا کر جینے کا معاوضہ ملتا ہے۔ قلم کو قتل کرو گے تو الفاظ بندوقوں سے ہی نکلیں گے۔ جہاں سوچ غلام ہو وہاں زنجیروں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ریاست کے اندر ایک مخصوص طبقے پر قانون مسلط کرنا بہت سے باغیوں کو جنم دیتا ہے۔ بزدل ہمیشہ اپنوں سے لڑتا ہے، دشمنوں سے نہیں۔ بہترین انسان وہ ہے جس کے پاس سماجی تبلیغ کے لیے الفاظ کی بجائے بہترین کردار ہو۔ زندہ قوم عظیم لوگوں کا مذہب نہیں دیکھتی۔ تاریخ مذہب پسند کو نہیں
इंसानियत पसंद को याद रखती है। तमाम सच्चाइयां जो खामोश रहें जहर बन जाती हैं। आप एक ईमानदार आदमी को धोखा दे सकते हैं, लेकिन उसे बेवकूफ नहीं बना सकते। जब अक्सरियत आपको बेवकूफ समझती है, तभी आपके अक्लमंद होने का कुछ इम्कान होता है। दोस्त ना होना एक अफसोसनाक बात है, लेकिन दुश्मनों का ना होना इससे भी ज्यादा अफसोसनाक है। अपनी सिमत को और सोच को ठीक रखो, कामयाबियां तुम्हारे कदम चूमेंगी। वो दोस्त जो आपको फहाशी और बुरे कामों पर मजबूर करे, वो आपका खुला दुश्मन है। हर मीठी जड़ मीठी घास को जन्म नहीं देती। मुर्दार है वो मुआशरा जहां मजलूम ये ना बता सके कि जालिम कौन है। बेशऊर कौम के लिए खड़ा होना खुदकशी के बराबर है। जहां बुज़दिली हो, वहां के लोग कलम को हथियार मानते हैं। जब गद्दारों और जालिमों के खिलाफ बगावत नहीं की जाती, तो गुलामी कौम का कल्चर बनती है। जालिमों पर रहम करना मजलूमों पर जुल्म करने के बराबर है। एक सरकश हुक्मरान इतना किसी चीज से नहीं डरता जितना कौम की बेदारी से डरता है। जब आप हार मानने के करीब महसूस करें, तो उन लोगों के बारे में सोचें जो आपको नाकाम देखना चाहते हैं। गुलाम कौम को इतना जलील करो कि वो जीने को ही तरक्की समझें। जब जालिम तकवा का लिबास पहन लेता है, तो सबसे बड़ी तबाही जन्म लेती है। तवील गुलामी के बाद हर जानदार उड़ना भूल जाता है। अगर महबूब इनकलाबी दर्स देने वाला हो, तो आशिक इनकलाब बर्पा कर सकता है। जो पढ़ाई नहीं करते, वो सिर्फ मर्दों के लिबास में मलबूस मवेशी हैं। जो परिंदा खा चुका है, वो भूखे परिंदे के साथ उड़ नहीं सकता। अगर तुम अपने शोबे में हुनरमंद हो, तो मुआशरे को खैरात और राशन देने की बजाय अपने जैसे कम अज कम 10 हुनरमंद इंसान दो। जीना दुनिया की नायाब तरीन चीज है। ज्यादातर लोग इस दुनिया में सिर्फ मौजूद होते हैं, जीते नहीं हैं। किसी ऐसे शख्स को सच ना बताएं जो उस पर पूरा नहीं उतरता। किरदार अगर बागी हो, तभी कहानी अजीम बनती है। अपनी जिंदगी फतुहात का जश्न मनाते हुए नहीं, बल्कि शिकस्तों पर काबू पाने में गुजारें। अगर अक्सरियत आप पर नहीं हंसती है, तो होशियार रहें कि आप कुछ गलत कह रहे हैं। दुनिया एक खतरनाक जगह है, बुराई करने वालों की वजह से नहीं, बल्कि उन लोगों की वजह से जो देखते हैं और कुछ नहीं करते। जुल्म के खिलाफ एक माँ की तरह चीखें या छोटे बच्चे की तरह रोएं, लेकिन खामोश मत रहें। हर उस गम से पनाह मांगनी चाहिए जिसमें बेबसी शामिल हो और इंसान अपने राज उगलना शुरू कर दे। मोहब्बत फितरी तौर पर जन्म लेती है, जबकि नफरत सिखाई जाती है। जब तुम्हें किसी का दर्द नजर आ रहा हो और तुम्हें उसका एहसास ना हो, तो समझ लो तुम अंदर से मर चुके हो। आदमी अजीम इसलिए नहीं होता कि वो नाकाम नहीं हुआ। आदमी अजीम होता है क्योंकि नाकामी उसे रोक नहीं पाती। दूर से बहादुर बनना बहुत ही आसान है। शऊर आने तक मुंह का इस्तेमाल सिर्फ खाने पीने के लिए करें।
अगर आपके बारे में बुरा कहा जाए और वो सच हो तो अपने आप को दुरुस्त करें, अगर ये झूठ है तो उस पर हंसें। ये जज्बाती लोगों का मुआशरा है। यहाँ धीमे लहजे में सच बोलने से ज्यादा ऊंची आवाज में गलत बयानी पर यकीन किया जाता है। कायनात के सबसे बदसूरत तरीन मनाजर में सबसे बदतर किसी मजबूत इंसान का टूटकर हालात से समझौता कर लेने का मंजर है। कामयाब होने वाले हर शख्स ने कुछ न कुछ ख्वाब देखा होगा। इंसान के 3 चेहरे होते हैं। पहला वो दुनिया को दिखाता है, दूसरा वो जो अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को दिखाता है, और तीसरा जो किसी को नहीं दिखाता और वो उसका असली चेहरा होता है। अंधेरे पर लानत भेजने से बेहतर है कि मोमबत्ती जलाएं। मेरे दुश्मन को बहादुर और मजबूत बनाना, ताकि अगर शिकस्त हुई तो मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े। दुनिया के तमाम अंधेरे एक शम्मा की रोशनी को नहीं बुझा सकते। मैं इस दुनिया में मजलूमों पर लगने वाले हर थप्पड़ का दर्द अपने चेहरे पर महसूस करता हूं। जब भी मुश्किल वक्त आए तो इन 5 लोगों से कभी मशवरा मत करना, वरना तुम्हारी मुश्किल और बढ़ जाएगी। नंबर 1, ऐसे लोग जो आपकी कामयाबी या खुशहाली को बर्दाश्त नहीं करते। उनकी बातें आपको गुमराह कर सकती हैं या आपके हक में नहीं होंगी। नंबर 2, जो आपके मसले को समझने की अहलियत न रखते हों या जिनके पास तजर्बा ना हो। उनका मशवरा आपके मसले को मजीद पेचीदा बना सकता है। नंबर 3, ऐसे लोग जो सिर्फ अपने मफाद के बारे में सोचते हैं। वो आपको ऐसा मशवरा दे सकते हैं जो उनके फायदे के लिए हो, ना कि आपके लिए। नंबर 4, जो हमेशा मसाइल को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं या सिर्फ नाकामी की बात करते हैं। उनकी बातें आपकी हिम्मत खत्म कर सकती हैं। नंबर 5, जो आपके मसले को मजाक में उड़ाते हैं या उस पर संजीदगी से गौर नहीं करते। उनका मशवरा आपको मजीद परेशान कर सकता है। हमेशा अक्लमंद, हमदर्द और तजर्बाकार लोगों से रहनुमाई हासिल करें, ताकि आपके मसाइल सही अंदाज में हल हो सकें। इंसान को नाकाम और गरीब रखने वाली वो 5 चीजें जो अमीर लोग आपको कभी नहीं बताएंगे। नंबर 1, ज्यादा खर्च करना, बगैर बजट के जिंदगी गुजारना और गैर जरूरी चीजों पर पैसा लगाना आपको हमेशा मुश्किलात में डाले रखेगा। अमीर लोग हमेशा अपने अखराजात पर काबू रखते हैं और सरमायाकारी को तरजीह देते हैं। नंबर 2, वक्त को जाया करना या गैर जरूरी कामों में उलझना कामयाबी के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। अमीर लोग वक्त की अहमियत को समझते हैं और उसे अपनी तरजीहात के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3, अपनी सलाहियतों को बेहतर ना बनाना और इल्म हासिल ना करना आपको तरक्की से दूर रखता है। कामयाब लोग हमेशा नई महारतें सीखने और खुद को अपग्रेड करने पर तवज्जो देते हैं। नंबर 4, अपने आप पर यकीन ना करना और हर वक्त नाकामी का डर रखना आपको आगे बढ़ने नहीं देता। अमीर लोग हमेशा मुस्बत सोचते हैं और खुद पर एतमाद करते हैं। नंबर 5, नेटवर्किंग और सही लोगों के साथ ताल्लुकात बनाना कामयाबी के लिए जरूरी है। नाकाम लोग अक्सर अकेले ही सब कुछ करने की कोशिश करते हैं।
जबकि अमीर लोग टीम वर्क और ताल्लुकात की ताकत को समझते हैं। बुरी नजर से बचने का आसान तरीन तरीका यह है कि कभी इन दो चीजों का जिक्र किसी से मत करें। नंबर 1, अपनी खुशियों का जिक्र मत करो, क्योंकि हर चेहरा तुम्हारी खुशी में खुश नहीं होता, कुछ सिर्फ जलते हैं। नंबर 2, अपने मंसूबों का जिक्र मत करो, क्योंकि हर सुनने वाला तुम्हारी कामयाबी का खैर ख्वाह नहीं होता, कुछ बस रोकने का मौका ढूंढते हैं। इन चीजों से बचकर और सही रास्ते पर चलकर आप अपनी कामयाबी की बुनियाद रख सकते हैं। शऊर जब बिकता है तो वो जाहलियत से भी कहीं ज्यादा खतरनाक साबित होता है। सुनो, वरना तुम्हारी जुबान तुम्हें बहरा कर देगी। खामोश रहो, महफूज रहो, खामोशी कभी गद्दारी नहीं करती। आजादी की तकलीफ गुलामी के आराम से बेहतर है। हर जिंदा शख्स को मरने से पहले एक दफा अपनी मर्जी से जीने का हक दिया जाए। मजलूमों की सबसे बड़ी गलती और कमजोरी ये है कि वो कभी मुत्तहिद नहीं होते, जबकि जालिम मुत्तहिद हो जाते हैं। इसलिए वो अपने मकसद में कामयाब होकर मजलूमों के वसाइल लूटते हैं। जिंदगी का अलमिया ये नहीं कि ये बहुत जल्द खत्म हो जाती है। जिंदगी का असल अलमिया ये है कि ये बहुत देर बाद समझ में आती है।